Jamia, JNU, New Delhi University, University of Rajasthan which was Central University, Presidency University of Kolkata, इतनी बड़ी बड़ी और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आज हमें देखने को मिल रहा है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी का इम्पोजिशन, इतनी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, सस्पेंशंस ऑफ स्टूडेंट जस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट्री विच इज मेड बाय बीबीसी। क्या एक डॉक्यूमेंट्री इतनी बड़ी हो सकती है कि वह देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा सके, या क्या एक डॉक्यूमेंट्री की महज एक स्क्रीनिंग हमारी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है? तो आखिर हुआ ये कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसे बैन कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा by the virtue of special emergency powers which is vested in the central government. BBC की इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को पब्लिश किया गया और 24 जनवरी जब इसका दूसरा एपिसोड पब्लिश होना था तो इसी बीच 21 जनवरी को मिनिस्ट्री, हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने इमरजेंसी पावर्स का यूज करके इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा बताया और इसे इंडिया में बैन कर दिया। बैन करने के बाद YouTube पर जितने भी लिंक्स इसके अवेलेबल थे उन सबको बैन कर दिया गया और किसी भी तरीके के शेयर करने को प्रोहिबिट कर दिया गया। इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर दो राय बनती है, एक जो कि बीबीसी के स्पोक्सपर्सन की राय है और दूसरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है। बीबीसी के स्पोक्सपर्सन का कहना है कि द डॉक्यूमेंट्री एड्रेसेस द 2002 कम्युनल राइट्स इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, of which Modi was chief minister at that time, that left 790 Muslims and 254 Hindus dead as per officials number. A decade later, a special investigation team appointed by India's Supreme Court exonerated Modi, saying that the leader had taken steps to control the situation. And the spokesperson ahead said that the documentary was rigorously researched according to the highest editorial standards. A wide range of voices, witnesses and experts were approached, and we have featured a range of opinions. This includes responses from the people in the BJP, India's ruling party. We, the BBC, offered the Indian government a right to reply to the matters raised in the series. It declined to respond. बीबीसी का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री हाईएस्ट एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स को लेकर बनाई गई है। इसमें बहुत ही गहन रिसर्च की गई है और काफी सारे ओपिनियंस और विटनेसेस को खंगाला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के अगेंस्ट, ताकि इंडिया की सोसाइटल हार्मनी को डिसबैलेंस कर दिया जाए और इंडिया की जो इमेज है उसको वर्ल्ड में खराब किया जाए। तो जिस लॉ के अंडर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, तो आइए जानते हैं आखिर वो लॉ क्या कहता है। What does the law say? Provision for blocking under IT rules in case of emergency. The government, as in the present case, can invoke its power under the provisions of Information Technology Rules 2021 for the takedown of content in emergency situations where a delay is not acceptable. The provision provides MIB with the power to issue notices to social media intermediaries to take down the content. The BBC documentary has been directed to be taken down for allegedly making unsubstantiated allegations regarding actions of foreign governments in India and casting aspersions on the Supreme Court's authority. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले ही साल नरेंद्र मोदी को, who was at that time चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, क्लीन चिट दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद यह पाया गया कि गुजरात दंगों में कहीं भी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। And according to the rule 16 of the IT rules, in cases of emergency, the Secretary Ministry of Information and Broadcasting may, if he is satisfied that it is necessary or expedient and justifiable, may issue blocking for public access of any information or part thereof through any computer resource. Further, as an interim measure, direction can be issued to publisher or intermediaries in control of such computer resources hosting such information without giving them an opportunity of hearing
तो यहाँ हमें समझ आता है कि कितनी ज्यादा वास्ट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली है इस आईटी रूल्स 2021 के बाद। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ML शर्मा के द्वारा, जिन्होंने ये कहा है कि जो बैन BBC की डॉक्यूमेंट्री पर लगाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बहुत असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, जिसकी सुनवाई 6 फरवरी को CJI जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी। इसके बाद काफी सारे रिपोर्टर्स के द्वारा भी और लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स के द्वारा भी इस बैन को चैलेंज किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया से बड़ी हो सकती है? और क्या एक ऐसी कंट्री जो इंडिया के रूट्स को नहीं जानती है वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए और हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए? डू लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।